ओके, सो देखो आज का टॉपिक हम देखेंगे दैट इज हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र ओके, अभी देखो हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो बेसिकली 3 प्रोसेस से होता है। योर फर्स्ट प्रोसेस इज थर्मल कंडक्शन। ओके, दूसरा क्या होता है थर्मल कन्वेक्शन, एंड तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ओके, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो किसके आते हैं, कंडक्शन के। ओके, सो कन्वेक्शन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आएगा, एक्सेप्ट हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आते। रेडिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 70 to 80% है, बराबर। और रेडिएशन का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो कितना होगा, नियर अबाउट 20 to 30% होता है। ओके, सो मेन पार्ट इज योर कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अभी देखो ध्यान रखना कि कंडक्शन में क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंडक्शन। सो कंडक्शन प्रोसेस जो होगा, सो दिस कंडक्शन प्रोसेस हीट कंडक्शन इज टेकन प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। ओके, तो किसके अंदर होगा, दैट इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स। इसके अंदर होता क्या है कि सपोज दैट इज द रॉड। ओके, कोई रॉड ले लेते हैं हुज वन एंड इज एट x इज इक्वल टू 0, ये आप क्या होगा, दैट इज x इज इक्वल टू well. Here the temperature is T1, this one is the second and his temperature is T2. Let us consider that T1 is greater than T2. Okay, तो अभी होगा क्या कि here because of the temperature difference heat flows from one point to another point, बराबर है। अल्टीमेटली होगा क्या कि that is a solid material, so this solid material is made up of atoms and molecules. So these are the atoms and molecules, they are connected via some bond. Okay, so now as you apply some energy, if you apply energy over here, then this molecule get this energy. Okay, as this molecule gain some energy, that is absorb some energy, so their vibrations, their oscillation becomes fast. Okay, because of the increase in kinetic energy, so their kinetic energy increases. Okay, and oscillation become fast. So as oscillation become fast, its amplitude increases. Okay, so because of the increase in amplitude here, the neighboring atom also gets disturbed. Okay, so we can say that they are connected via some bond. So as amplitude increases, so we can say that here some part of the energy is transferred to the neighboring atom. Okay, likewise here as this particle gain absorb some energy. Okay, so again its amplitude increases, and because of this increase in amplitude, its neighboring atom get disturbed. Okay, so now here you are giving the energy to the one end, that is to the limited molecules of a given solid. But now because of the oscillation here, energy is transferred from one point to another point. Okay, that is from higher temperature to lower temperature. Okay, so that's why here energy is transferred, and this process is called heat conduction. Okay, so याद रखना heat conduction is the process which is taken place only in solids, बराबर है। Okay, now the main important part is that is a solid material, means these atoms and molecules, their resultant displacement is 0. Okay, they oscillate to their mean position. Okay, their displacement is 0. Okay, and because of their oscillation, because of their vibrations here, energy is transferred. Clear? So that is the thermal conduction process. Okay, now let us talk about the original equation that we required, बराबर। चलो ये क्या हो जाएगा, so let us consider that is our solid. Okay, here that is the x is equal to 0 position, that is the x is equal to L position. Here now you are giving energy to the one end whose temperature is initially, that is say initially the temperature of these two ends are equal. Now you are giving energy over here, that is at the one hand, so its temperature increases. Okay, so again we are taking that T1 is greater than T2. Okay, so what happened, as we apply some energy over here, this energy transferred from x is equal to 0 position to x is equal to L position. Now if we divide this material, this whole material into small elements, so these are the unit cross sectional areas. Okay, ये क्या है, these are the unit cross sectional areas. So here energy is transferred from one area to another area like this way. Okay, so as we move from left to right, what about the temperature? Here temperature at this point, at this point, at this point, so temperature decreases, and this end possesses minimum temperature.
Okay, so heat is flowing from x is equal to 0 to x is equal to L position. Okay, as you give the energy for a long time, okay, then what happened? The temperature of each and every cross section remains different, but the temperature difference between any two cross sections, that remains constant. Okay, so if temperature difference, that is delta T is equal to T2 minus T1, that remains constant between any two adjacent cross section. Okay, so we can say that here heat transferred between any two cross section, that remains constant. Means what? If we are talking about this cross section, so इस cross section के लिए क्या बोलेंगे? So this cross section absorbs energy from the previous one, okay, and this equal amount of energy is transferred, that is released by this cross section to the neighboring. Okay, so in this case here we can say that delta Q for each and every cross section, that remains constant. Okay, so heat flow remains constant, so heat flow becomes constant. Okay, so this condition of a given solid is called thermal steady state. Thermal steady state. ओके, एंड ध्यान रखना आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो किसके आएंगे? वो सारे के सारे थर्मल स्टेडी स्टेट के ही होंगे. मीन्स आपको याद क्या रखना है? ओके, याद क्या रखना है? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एनी टू क्रॉस सेक्शन, एनी टू एडजेसेंट क्रॉस सेक्शन, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. बराबर है. तो इसको मैं अगर देखूं कि डेट इज़ T1 है, इसको मैं T2 भी रहने देता हूँ, इसको मैं T2 करता हूँ, डेट इज़ T3, डेट इज़ T4, दिस वन इज़ T5, T6, दिस वन इज़ T7. ओके, सो ऑल दिस टेम्परेचर्स आर डिफरेंट. ठीक है ना. सबसे मिनिमम कौन होगा? T7 होगा. ओके, सबसे मैक्सिमम कौन होगा? T1 होगा. ठीक है ना. बट द टेम्परेचर डिफरेंस किसके लिए? दैट इज डेल्टा T, दैट इज T1 माइनस T2, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? लास्ट वन, दैट इज T6 माइनस T7 होगा. ओके, तो ये कब मिलेगा? व्हेन द थर्मल स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन बाय द गिवन मटेरियल. और ये कब होगा? For a long time. That means if you apply this energy that is at the one end for a long time, then you get this thermal steady state. Okay, तो thermal steady state में क्या होगा? Temperature difference between any two adjacent cross section that remains constant. बराबर है. तो हम जो वर्क करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? थ्रू द थर्मल स्टेडी स्टेट. डन. ठीक है. नाउ फिर से अभी इसके इक्वेशंस देखते हैं तो कैसे मिलेगा. सो ये हुए हमारे लिए, that is a cross section, that means our solid material, that is x is equal to 0 position, that is x is equal to L, that is a T1, that is temperature T2, here temperature T1 is greater than T2, and these are the different cross sections. ठीक है. Now let's define our first quantity, which is called temperature gradient. Temperature gradient. Now what is temperature gradient? Temperature gradient is nothing but that is the delta T divided by delta X. Okay, rate of change of temperature with respect to position. Okay, so that is called temperature gradient. That is equal to, we can say that T2 minus T1 divided by X2 minus X1. Okay, now in this case here we are getting this temperature gradient as a negative. Why? Because T1 is greater than T2. ओके, सो फाइनल टेम्परेचर, दैट मीन्स एट T2 इज लेस देन T1, तो डेल्टा T कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. बराबर है. सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दिस केस दैट वी आर गेटिंग नेगेटिव. डन. नाउ फॉर थर्मल स्टेडी स्टेट दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट. बराबर है ना. तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, उतना ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा. ठीक है. सो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा. किसके लिए? फॉर अ थर्मल स्टेडी स्टेट. तो अगर हम थर्मल स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो मैं ऐसा कुछ कंडीशन मिलेगा. देखो, दैट इज़ अ टेम्परेचर T एंड दिस वन इज़ दी पोजीशन X. ओके, दैट इज़ 0. बराबर. अगर ये T1 ज़्यादा है तो T1 क्या होगा? ये होगा, दैट इज़ योर T1. सो दैट इज़ द मटेरियल, दैट इज़ द रॉड. ठीक है ना. दैट इज़ द टेम्परेचर T1, तो T1 हमने यहाँ पे कर दिया. T2 क्या होगा? दैट इज़ द टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस X, तो T2 जो है वो इतना होगा. सो दैट इज़ योर टेम्परेचर T2 विच इज़ वेरी लेस. बराबर है. तो ये T2 हो जाएगा. अगर हम शुरुआत करते हैं, दैट मीन्स फॉर अ लेस टाइम. ओके, एज इन द बिगिनिंग पार्ट हियर दिस टेम्परेचर T1 डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली लाइक दिस वे.
ओके, फिर से टाइम बढ़ाएगा तो क्या होगा, वो ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके, वंस द थर्मल स्टेडी स्टेट इज get, that is thermal steady state, the situation of thermal steady state is get by the material, that means this rod, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि आपको ऐसा ग्राफ हो जाएगा, बराबर है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेज लीनियरली, ओके, वंस योर थर्मल स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन, बराबर। थर्मल स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट रहेगा कैसा हो जाएगा, सो दैट इज लीनियर वन, तो आपका पाथ जो है लीनियर आएगा। सो दैट इज योर टेम्परेचर T2, समझ में आया। सो दैट इज टेम्परेचर T1 विच इज हायर वन, दिस वन इज टेम्परेचर T2, बराबर है। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन, द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो हीट एनर्जी डिफाइन करेंगे, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, ओके, पर यूनिट टाइम, so that is called delta Q divided by delta T। तो ये क्या होगा, सो दिस डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, वो किस पे डिपेंड करेगा, सो दैट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फर्स्ट आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और दूसरा क्या आएगा, दैट इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा X। ओके, सो नाउ हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, हीट करंट बोलेंगे। सो हीट करंट H इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T दैट इज इक्वल टू Q बाई T दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू K इंटू ए, तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज L। क्लियर, सो दैट इज द फॉर्मूला। तो मेरे को इसको फॉर्म में, ये प्लस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन से दैट कैपिटल H दैट इज इक्वल टू दैट इज Q बाई टी, कैपिटल H को क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड हीट करंट, कैपिटल H इज इक्वल टू Q बाई टी दैट इज इक्वल टू K इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला, ये क्या है, दैट इज द ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर हीट करंट। अभी हीट करंट डेवलप क्यों हुआ, सो हीट करंट डेवलप बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, बराबर। अगर हम इस सिचुएशन को किसके साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, तो दैट इज़ द रेजिस्टर, ओके, जिसको हमने क्या किया था, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सो हियर विद इन दिस रेजिस्टर हियर वी गेट द करंट पास होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस ई, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस बैटरी हियर करंट इज पास फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब क्या हो गया, दिस करंट, ये जो करंट होगा वो क्यों डेवलप होगा, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है। तो हम करंट क्या लिखते हैं, सो हियर वी कैन राइट दिस करंट I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हियर वी आर गेटिंग द एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी क्यों ट्रांसफर होगा, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, दैट इज द कॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। जैसे यहाँ पे कॉज किसका था, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है। तो ये जो है डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉज ऑफ हीट करंट, ठीक है। तो इसको हमें क्या इसके फॉर्म में लिखना है, तो देखो हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, वी कैन से दैट I इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय R। डेल्टा V क्या होगा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इसको में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय K इंटू ए, बराबर है। तो ये क्या होगा, दैट इज अवर पोटेंशियल डिफरेंस। तो नीचे आना क्या चाहिए, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा, दैट इज रेजिस्टेंस, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि दैट इज इक्वल टू डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH। नाउ व्हाट इज RTH, तो RTH क्या होगा, RTH इज नथिंग बट दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, ये क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय K इंटू ए। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिलेगा, दैट इज L डिवाइडेड बाय K। चलो क्लियर। सो हीट करंट आपको फाइनली याद क्या रखना है कि H इज इक्वल टू Q बाई टी दैट इज इक्वल टू K इंटू ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L दैट इज इक्वल टू डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH। ओके, RTH को क्या बोलोगे, दैट इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या होगा, L डिवाइडेड बाय K इंटू ए।
हियर के को क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ये क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ द मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, तो ये कैसा मटेरियल है। अगर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, देखो ध्यान रखना, जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फास्ट होता है वहाँ पर हीट कंडक्शन भी फास्ट होगा। ओके, सो ऑल द कंडक्टर्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिकल, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के अंदर क्या होगा, सो कॉपर इज अ कंडक्टर मटेरियल, तो जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है कि नहीं। तो वैसे जो मटेरियल होगा उसके अंदर हीट करंट भी होगा, वो भी कैसा होगा, जल्दी से आपको पास मिलेगा, बराबर है। तो जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी हीट कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर। अभी देखो इसका यूनिट आपको फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं, तो क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज जूल पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू वॉट। ओके, तो इसका यूनिट हो जाएगा वॉट। ये हो जाएगा एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर हो जाएगा, सो मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा मीटर, तो वॉट पर मीटर केल्विन, दैट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, नाउ यू कैन डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला, बट उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, चलो याद रहेगा। सो दैट इज रिगार्डिंग हीट करंट। डन। अभी देखो ये क्या है, RTH, तो RTH क्या हो जाएगा हमारे लिए, RTH इज थर्मल रेजिस्टेंस। चलो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। चलो इसके अंदर कोई डाउट है, तो सबसे अच्छा वाला एंड सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन क्या आना चाहिए। सो आपको फाइंड करना आएगा दैट इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, मतलब कि टेम्परेचर एट पर्टिकुलर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक रॉड दे दिया है, सो दैट इज़ द रॉड, ओके, हुज लेंथ इज सपोज L। चलो उसका लेंथ कितना है, L है, बराबर है। दिस वन इज अ T1, सो T2, सो T1 एंड T2 क्या हो जाएगा, दीज आर द टेम्परेचर्स ऑफ द टू एंड्स, बराबर है। याद रखना कि टेम्परेचर T1 कैसा है, विच इज़ ग्रेटर देन T2, इसका एरिया कितना होगा, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू A। तो आपको फाइंड क्या करना आएगा, फाइंड करने को आएगा टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको फाइंड करना है विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द T1, दैट इज़ फ्रॉम वन एंड। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, सो मान लीजिए कि आपको Tx फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, तो ये जो कंडीशन है आपको किस में दी जाएगी, सो दिस कंडीशन इज इन थर्मल स्टेडी स्टेट। तो आपको याद रखना है कि थर्मल स्टेडी स्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए क्या करोगे, तो आपके लिए ये पता है दैट इज T1 इज़ नोन, T2 वो भी नोन है, बराबर है। तो आप क्या करोगे, पूरे के पूरे रॉड के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट अप्लाई करो, और जहाँ पर फाइंड करना है वहीं से टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है अप्लाई करो। सो हियर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या सर आएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे सबसे पहले कहाँ पर, पूरे रॉड के ऊपर। तो हियर वी कैन से दैट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 माइनस TX, सो दैट इज T1 माइनस TX डिवाइडेड बाय x आपको दिया है, L आपको दिया है, T1 T2 आपको दिया है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ TX। सो दैट इज़ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड द टेम्परेचर एट पर्टिकुलर पॉइंट, बराबर। अगर कोई एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि सपोज T1 आपको कितना दिया है, सो T1 इज़ गिवन से 60 डिग्री सेल्सियस, T2 जो है वो आपको दिया है 40 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया है। ओके, चलो लेंथ दिया है, सपोज लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर दे दिया है। ओके, एंड आपको फाइंड कहाँ पे करना है, फाइंड करना है TX, ओके, विच इज़ एट अ डिस्टेंस x का वैल्यू हम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वन एंड, बराबर है। फिर से व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2, T1 इज 60 डिग्री, T2 40 डिग्री सेल्सियस, टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 1 मीटर। ओके, यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर, ओके, एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉट एंड,
बराबर है। तो क्या करोगे, इधर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो T1 कितना आ जाएगा, सो T1 इज 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय लेंथ इज़ 1 मीटर, तो यहाँ पे मैं 100 सेंटीमीटर कर दूंगा, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस TX। तो T1 कितना होगा, 60 माइनस TX आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, सो दिस 0 0 गेट कैंसल, 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 60 माइनस TX डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, दिस वन इज 8। ओके, सो 60 माइनस TX इज इक्वल टू 8 मीन्स व्हाट, TX का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 52 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी इजी मेथड, बराबर, ध्यान रखना आपको इसको ऐसे फाइंड करना आ सकता है। चलो क्लियर, बोलो समझ में आएगा कि नहीं। सो नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज़ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, दैट मतलब कि रॉड और कंडक्टर्स। ओके, तो इसके अंदर क्या आएगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। सो फर्स्ट आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स में करना क्या है, तो ध्यान रखना आपको क्या दिया होगा, आपको ऐसा दिया है कि डेट इज़ वन कंडक्टर, बराबर, अदरवाइज मैं उसको क्या करूँ, एक पूरा का पूरा कंडक्टर बता लेता हूँ, तो डेट इज़ अ कंडक्टर, ओके, जिसका एरिया कितना है A। ओके, नाउ दिस कंडक्टर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, बराबर, कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, चलो मैं n कर लेता हूँ, डेट इज़ द nth पार्ट। ओके, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, डिफरेंट है, डेट इज K1 K2 K3 K4, दिस वन इज K5, ये कौन सा होगा, Kn होगा। ओके, सो आपने किया क्या है, सो यू हैव नंबर ऑफ कंडक्टर्स जिसका डिफरेंट, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कैसा है, डिफरेंट है, सबको आपने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और कंडीशन क्या रखी है, हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी कंडक्टर दैट रिमेन्स सेम। सबकी लेंथ जो है वो भी अलग अलग कर लेते हैं, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इसका L3 और इसका कितना हो जाएगा, Ln है, बराबर है। सो ऐसा जो कनेक्शन होगा उसको क्या बोलोगे आप, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, बराबर। याद रखना अगर मैं उसको कॉम्पोजिट रॉड समझ लूँ तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा, एरिया जो है, दैट रखना सबका एरिया कैसा है, इक्वल है कि नहीं, यस है। लेंथ क्या होगा, दैट इज डिफरेंट होगा, ओके, अदरवाइज वी कैन से दैट डिवाइड होगा, बराबर है। तो अगर आपके पास क्या है, एक कॉम्पोजिट रॉड है, मतलब एक रॉड है, उसको आप क्या करते हो, उसको आप डिफरेंट लेंथ के अंदर डिवाइड करते हो, ओके, उसका एरिया कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ऐसा जो कनेक्शन आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, बराबर है। अभी देखो सबका टेम्परेचर्स देख लेते हैं, तो इसका टेम्परेचर T1 T2 T3 T4, दिस वन इज T5, ये कितना होगा, Tn-1 एंड दिस वन इज Tn, बोलो हाँ या ना। सो दीज आर द टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट एंड एट थर्मल स्टेडी स्टेट। तो अगर थर्मल स्टेडी स्टेट है तो क्या हो जाएगा, हीट कंडक्शन जो होगा फॉर ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन वो सेम रहेगा कि नहीं। सो वी कैन से दैट इन थर्मल स्टेडी स्टेट, थर्मल स्टेडी स्टेट, बोलो क्या होगा, इन ए थर्मल स्टेडी स्टेट वी कैन से दैट H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Hn होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि dq1 बाई dt इज इक्वल टू dq2 बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, dt इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, dqn बाय dt, बराबर है कि नहीं। तो अगर मैं ये फॉर्मूला dq बाई dt की फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन पे लगाते हैं तो मैं क्या मिलेगा, तुम्हारा पहला टर्म क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू K1 इंटू A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू दूसरा क्या आना चाहिए, दैट इज K2A, तो यहाँ पे मिलेगा K2A, ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय L2 एंड फाइनली क्या आना चाहिए, सो फाइनली आपको मिलेगा Kn, that is Tn-1 minus Tn divided by Ln, बराबर है। सो दैट इज द इक्वेशंस, बराबर है, इन थर्मल स्टेडी स्टेट। तो इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो देखो सबका एरिया कैसा है, कांस्टेंट है तो निकल जाएगा,
तो देखो हमें क्या मिलेगा, वी कैन से दैट इज K1 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू K2, मैं लास्ट वाला लिखता हूँ तो क्या सा हो जाएगा, दैट इज योर Kn, दैट इज Tn माइनस 1 माइनस Tn डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Ln हो जाएगा, बराबर है। अभी देखो सबका टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा होगा, इक्वल होगा कि नहीं, सो वी कैन से दैट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू Tn माइनस 1 माइनस Tn डिवाइडेड बाय Ln हो सकता है कि नहीं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सबका डिफरेंट क्या है, दीज आर द थर्मल कंडक्टिविटीज, सो वी कैन से दैट K इंटू G1 दैट इज K1 इंटू G1 इज इक्वल टू K2 इंटू G2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Kn इंटू Gn हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, कांस्टेंट होगी, सो वी कैन से दैट K इंटू G दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। हियर G को क्या बोलोगे, G इज नथिंग बट दैट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, G क्या होगा, दैट इज अवर टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलो क्लियर, चलो समझ में आएगा कि नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है किसके अंदर, फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें, अच्छा इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, बोलो हाँ या ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। अगर आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी कैसी रहेगी, कम रहेगी, ठीक है ना, एंड एज G कम रहेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, ज़्यादा है। डन। चलो इसी के बेस पे हम क्या डिफाइन करेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। बोलो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, सो थर्मल रेजिस्टेंस बोलो क्या होना चाहिए, तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंदर मिलता था कि फर्स्ट रजिस्टर सेकंड रजिस्टर उसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो आपको क्या मिल रहा था, सो हमें मिल रहा था R इन सीरीज, क्या होगा R इन सीरीज इज इक्वल टू क्या लेंगे, R1 प्लस R2 अप टू क्या करना है, Rn हो जाएगा कि नहीं। तो आपको प्रॉब्लम जो है ऐसे ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो तो R1 क्या होगा, R1 इज नथिंग बट दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस, सो वी कैन से दैट L1 डिवाइडेड बाय K1A प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय K2A अप टू क्या आना चाहिए, Ln डिवाइडेड बाय KNA हो जाएगा, यस बराबर है। तो RS मतलब कि पूरा का पूरा जो रॉड होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, सो वी कैन से दैट L1 प्लस L2 अप टू क्या हो जाएगा Ln डिवाइडेड बाय K इफेक्टिव इंटू A। चलो सब में क्या कटेगा, A कट होना चाहिए, सो दिस A get cancelled, so finally what you are getting, so we are getting K effective is equal to, चलो K effective कितना आएगा, so K effective is equal to that is L1 plus L2 up to Ln divided by L1 divided by K1 plus L2 divided by K2 up to क्या आना चाहिए, Ln divided by Kn आएगा। so that is the formula for K effective in series combination, बराबर। इसको डायरेक्टली याद रख सकना है तो रख सकते हो या फिर इसके थ्रू आपको याद आ जाना चाहिए, बराबर। अगर आपके पास दो कंडक्टर है, सो वी कैन से दैट फॉर टू कंडक्टर्स, बराबर। देखो दो कंडक्टर है तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर K इफेक्टिव, K इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना होगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, L1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K2। देखो सिंपल सा हो गया, L1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K2। और अगर इसके अंदर भी सिंप्लीफाइड करना है तो क्या करेंगे कि L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2L, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। सो आप फाइंड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 आएगा, बोलो हाँ या ना, यस। सो दैट इज द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी फॉर टू कंडक्टर्स हैविंग द सेम लेंथ, बराबर है। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, आपको ये से याद रखना, दैट इज द बेस्ट इक्वेशन। चलो डन, अरे हाँ या ना, यस। चलो नेक्स्ट आएगा हमारे लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सेकंड आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या, तो अब आपको पता होगा कि दैट इज़ दी, ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट कंडक्टर जिसका एरिया कितना है, दैट इज़ इक्वल टू A1, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K1। चलो ये हो जाएगा सेकंड कंडक्टर
दैट इज़ योर थर्ड कंडक्टर। लाइकवाइज आपने उसको किसने कनेक्ट किया, दैट इज़ योर nth वन, बराबर है। तो ये क्या होगा, दैट इज़ योर K2 A2, दैट इज़ K3 A3, और ये कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा, दैट इज़ KN AN होगा। देखो ध्यान रखना यहाँ पे लेंथ सेम है, बराबर है, ओके। एंड टेम्परेचर जो है वो ऐसे होगा, तो T1 T2, दैट इज़ एक एंड का टेम्परेचर कितना होगा, T1 होगा, दैट मीन्स T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी एंड। देखो ध्यान रखना, ठीक है ना, जितने भी कंडक्टर से आपने उसको कनेक्ट किए सबका एक साइड का, एक एंड का टेम्परेचर कितना होगा, T1 ही रहेगा, एंड सेकेंड एंड का कितना होगा, T2 होगा, बराबर। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो समझ लेना ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। जैसे आपने वहाँ पे क्या रखा था, इलेक्ट्रिकल के अंदर वोल्टेज सेम था, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहेगा, देखो, हाँ या ना। सो दैट इज़ दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या लिख सकते हैं कि इन थर्मल स्टेडी स्टेट H इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, H1 प्लस H2 प्लस H3, H1 प्लस H2 अप टू क्या हो जाएगा, HN हो जाएगा, हाँ। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/RTH इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू क्या होगा, 1/RN हो जाएगा, ठीक है। चलो 1/R1 क्या होगा, सो R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई KA, तो यहाँ पे आएगा L डिवाइडेड बाई KA, मतलब के L1, सॉरी L तो सेम है, L डिवाइडेड बाय K1A, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, K2A डिवाइडेड बाय L, अप टू क्या आना चाहिए लास्ट के लिए, KN इंटू A डिवाइडेड बाय L हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सो दैट इज इक्वल टू K इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज A1 प्लस A2, ओके, दैट इज A1 A2, ओके, दिस वन इज AN, अप टू क्या आना चाहिए, प्लस AN डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो L तो सबका सेम है, सो वी कैन से दैट K इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अप टू क्या हो जाएगा, KNAN डिवाइडेड बाय दैट इज A1 प्लस A2 अप टू क्या हो जाएगा, AN। चलो क्लियर, बोलो समझ में आया कि नहीं, ओके। अगर आपके पास दो रॉड है, अगर दो ही रॉड है तो क्या करोगे, अगर A1 A2 सेम है, सो इफ़ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, A सबका सेम ही है, तो क्या करोगे, तो A कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, सो KP इज इक्वल टू इट इज़ K1 प्लस K2 अप टू KN होगा, बराबर है। सो दैट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसके क्वेश्चन जो आपको पूछते हैं, बराबर है। चलो किसी को कोई डाउट बेटा, ये लिखना है किसी को, ठीक है, बोलो क्या करोगे। सो देखो यहाँ पर दिया क्या है, द क्वेश्चन इज दैट कि टू मटीरियल्स हैविंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3K एंड K एंड थिकनेस D एंड 3D, ओके। थिकनेस मीन्स व्हाट, दैट इज लेंथ, ठीक है, ध्यान रखना, ये थिकनेस है, इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ, देखो यहाँ पे, ठीक है, दी आई है फिगर के अंदर, रिस्पेक्टिवली आर जॉइंट टू फॉर्म अ स्लैब as shown in figure, the temperatures of the outer surface are θ2 and θ1। चलो दिया है θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली, θ2 यहाँ पर ज़्यादा है तो फ्लो किस तरफ होगा, θ2 से θ1 की तरफ होगा। द टेम्परेचर एट द इंटरफेस, बोलो बहुत ईजी हो गया, टेम्परेचर एट द इंटरफेस क्या करोगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, से Tx होगा, बोलो क्या अप्लाई करोगे, दैट इज़ अ सीरीज कनेक्शन, सो वी कैन से R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, बराबर है। बोलो R1 कितना होगा, दैट इज़ L, that is D डिवाइडेड बाई K, that is 3K इंटू A, प्लस ये कितना होगा, that is 3D डिवाइडेड बाय K इंटू A, that is इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, तो टोटल लेंथ इज D प्लस 3D, that is इक्वल टू 4 टाइम्स D डिवाइडेड बाई K इफेक्टिव, हाँ बट ये तो काम ही नहीं लगेगा ना। चलो यहाँ पे कर सकते हैं कि इन थर्मल स्टेडी स्टेट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टू ऑफ सेकेंड, सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऑफ फर्स्ट रॉड दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऑफ सेकेंड रॉड। चलो इसके लिए क्या होगा, सो यहाँ पे लिखेंगे कि θ2 माइनस टी इंटू एल, एल मीन्स डी इंटू 3K डिवाइडेड बाय, सॉरी K इंटू A आएगा ना, ये तो
देखो के इंटू ए, के कितना होगा, डेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स के एरिया ए, डेट इज θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय लेंथ इज d इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा 3d है, मतलब के इंटू ए, ये टेम्परेचर T होगा ना, दैट इज T माइनस θ1 डिवाइडेड बाय 3d, बराबर है। चलो ये डी कटा, ये ए कट जाएगा, बराबर। चलो के भी कट जाएगा। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग 3θ1 माइनस 3t इज इक्वल टू, डेट इज T माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 3। तो अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, डेट इज़ 9 टाइम्स θ1 माइनस 9 टाइम्स T इज इक्वल टू T माइनस θ1। ओके, चलो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे और इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan θ1 इज इक्वल टू tan T मिलेगा। अरे θ1 θ2 तो मैंने लोचा मारा था, रुको। देखो क्या करोगे इधर, θ1 डेल्टा θ1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो इसके लिए करोगे तो डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स के, दिस वन इज इंटू ए θ2 माइनस टी डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा के, दिस वन इज ए, ये हो जाएगा टी माइनस θ1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स डी, बराबर है। चलो डी कटेगा, ए कटेगा, चलो के भी कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 3θ2 माइनस 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको करेंगे। सो 9 टाइम्स θ2 माइनस 9 टाइम्स t इज इक्वल टू t माइनस θ1, बराबर है। तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सो 9 टाइम्स θ2 प्लस θ1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स t, देयरफॉर t का आंसर क्या आएगा 9 टाइम्स θ2 प्लस θ1 डिवाइडेड बाई 10, बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलो आया समझ में, हेलो, बराबर है। वो टेम्परेचर ग्रेडियंट से भी हो जाता, बट टेम्परेचर ग्रेडियंट से क्यों नहीं हुआ पता नहीं चला, बराबर है। अच्छा देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट के अंदर कब काम करना है, कि जब आपके पास एक ही मटेरियल होगा तब। यहाँ पे तो आपको दो अलग अलग मटेरियल है ना, इसकी वजह से हमें इससे आंसर आएगा, बराबर है। यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग मटेरियल है ना, 3K एंड K, डेट्स वाई हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और था वो उससे नहीं आएगा, किससे, टेम्परेचर ग्रेडियंट से डायरेक्ट नहीं आएगा, बराबर है। चलो देखो और कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ऐसा भी दूसरा एक क्वेश्चन था हमारे पास, इसके अंदर करेंगे क्या, तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी, दिख रहा है, ये रहा ए बी ऑफ लेंथ 2L, अनदर बैंड रॉड PQ, ये रहा PQ ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एज AB एंड लेंथ 3L/2 इज कनेक्टेड अक्रॉस AB, बराबर। सी डी फिगर इन अ स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, यहाँ पे ओके एंड यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो मेजर करना है, विच शुड बी क्लोज, मतलब कि आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, मतलब कि थोड़ा सा प्लस माइनस होगा। बोलो क्या करोगे, देखो यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिया है, कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि यहाँ पे 120 होगा, यहाँ पे कितना होगा 0 होगा। टू एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ 2L, बराबर है, हो गया। अनदर बैंड रॉड PQ ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन, बराबर। तो देखो इसका रेंज ये है 3L/2, मतलब कि ये L/4, दिस वन इज L, दैट इज ऑल्सो L/4। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, आपका रजिस्टर मिलेगा कि नहीं, ओके। इसका मैं लेंथ देखूँ तो इसका लेंथ कितना होगा L/2, इसका तो L है, इसका भी L/2 होगा, अरे हाँ या ना, ये भी L होगा, दैट इज ऑल्सो L/4, यस और नो। तो क्या ये रजिस्टर नहीं हो सकता, बराबर। अरे समझ में आया कि नहीं, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, तो देखो ऐसे होगा, सो दैट इज योर AB,
बराबर है। ये क्या होगा, फर्स्ट रजिस्टर, दैट इज़ योर सेकंड रजिस्टर, दैट इज़ योर थर्ड रजिस्टर। ये क्या हो गया, पॉइंट ए, दिस वन इज़ पॉइंट बी, ये है पॉइंट पी, दैट इज़ पॉइंट क्यू। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे ऐसे होगा एक, दैट इज़ नंबर 2 एंड दैट इज़ नंबर 3। बराबर है, सबका लेंथ सेम है, सॉरी लेंथ डिफरेंट है, एरिया सेम है। तो आपके लिए थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आर इज इक्वल टू दैट इज एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए। बराबर है। तो देखो ये तीन किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो पहले क्या करोगे, 1 2 3 को सीरीज में फाइंड कर लो और उसका ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो इन तीनों को फाइंड कर लोगे तो आपके पास 3 रजिस्टर हो जाएंगे कि नहीं। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू आप टेम्परेचर जो है वो मेज़र कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। तो देखो इन तीन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इन तीन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, वी कैन से 1 2 3, तो इट इज़ आर इफेक्टिव, दैट मीन्स आर डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। बराबर है। बोलो लेंथ कितना होगा, तो लेंथ इज L/4 प्लस L/4। बराबर है ना, कितना होगा L प्लस L/4 प्लस L/4, मतलब कि L/2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना। डिवाइडेड बाय K इंटू ए, भी K भी सेम है, L भी सेम है, एरिया भी सेम है। सो हियर वी कैन से दैट, अच्छा L एंड K मतलब कि L डिफरेंट है, एरियाज जो है वो सेम है, थर्मल कंडक्टिविटीज़ भी सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस जो वो लेंथ के हिसाब से आएगा कि नहीं। तो देखो टोटल लेंथ कितना होगा, सो इट इज़ L प्लस L/2 इज इक्वल टू वॉट, 3L/2। अरे हाँ या ना, यस और नो। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इनका इन तीन का, सो आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। बोलो हाँ या ना। सो दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स R। बराबर है। तो देखो इसको मैं क्या लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ R1, सो दैट इज़ योर R1। ओके, इसको मैं लेता हूँ R2, ये हो जाएगा R3। ये दोनों किस में हो जाएंगे, R2 एंड ये R डैश, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। अरे हाँ या ना। तो देखो R डैश का वैल्यू कितना आया, R डैश का वैल्यू है 3/2R। R2 कितना आया हमारे लिए, लेंथ L ही है, तो R2 को मैं देखूंगा, R2 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। सो देखो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, मतलब कि पैरेलल देखते हैं, तो R डबल डैश ले लेता हूँ, तो R डबल डैश क्या होगा, दैट इज इक्वल टू R2 इंटू R डैश डिवाइडेड बाय R2 प्लस R डैश। बराबर, हमें तो सिर्फ लेंथ ही में को करना है। तो देखो 3/2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1, ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 टाइम्स L डिवाइडेड बाय KA हो जाएगा। तो 3/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2। सो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 3/5 L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। सो दैट इज़ योर R डबल डैश। तो अभी आपके पास क्या होगा, R1 ऐसे होगा, दैट इज़ योर R1, दिस वन इज़ योर R डबल डैश एंड दैट इज़ योर R3। अरे हाँ या ना, बराबर है, यस और नो। ओके, अभी हीट ट्रांसफर देखो स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब क्या होगा कि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 होगा कि नहीं। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3। अभी H का फॉर्मूला क्या लेंगे, H फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH, ठीक है ना। तो देखो H1 का वैल्यू कितना आएगा, तो डेट इज़ इक्वल टू, देखो यहाँ पे T1 है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर में देख लेता हूँ, डेट इज़ इक्वल टू से T1, यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा T2 एंड यहाँ पे कितना होगा 0, डेट इज़ इक्वल टू 120। तो 120 माइनस T1 होगा डिवाइडेड बाय R1। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, सो डेट इज़ 120 माइनस T1 डिवाइडेड बाय R1। R1 का वैल्यू कितना होगा, डेट इज़ इक्वल टू L/2। तो मैं यहाँ पे सीधा कर लेता हूँ, डेट इज़ L/2, बराबर है, क्या आएगा L बाय दैट इज़ 1/2 L डिवाइडेड बाई K। तो ये हो जाएगा 1/2 L डिवाइडेड बाई K इंटू ए इज इक्वल टू H2 कितना होगा,
तो H2 का वैल्यू कितना होगा, आर डबल डैश कितना होता है 3/5 L डिवाइडेड बाई के ए, दैट इज T1 माइनस T2। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 3/5 L डिवाइडेड बाई के इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा T2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये भी कितना होगा L इंटू ए डिवाइडेड बाई के इन सॉरी 1/2 L डिवाइडेड बाई के, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 L डिवाइडेड बाई के इंटू ए। बोलो ये कटा ये कटा ये कटा, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज 240 माइनस 2 टाइम्स T1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज 5T1 माइनस 5T2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू T2, ये तो कटा ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2, बराबर है। तो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड को जो कंपेयर कर लेते हैं तो ऐसा आपको मिलेगा कि 240 माइनस 2T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2T, ये 2 तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। सो 120 इज इक्वल माइनस, एक मिनट ये T2 है ना, हाँ। सो 120 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू T2, इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। अभी क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, सो 5T1 माइनस 5T2 इज इक्वल टू दैट इज 6T2। सो 5T1 माइनस ये T2 उस तरफ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। सो माइनस 11T2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 5T1 माइनस 11T2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको इस तरफ लेके जाते हैं। सो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 120, बराबर है। बोलो क्या करोगे, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाइड सॉरी 11 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 11, ये भी हो जाएगा 11। सो 120 इंटू 11 कितना हो जाएगा, सो इंटू में 11 कर देता हूँ, तो ये कटा तो आपका T1 का वैल्यू कितना आएगा 11 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 16। तो T1 इज इक्वल टू 120 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 16, बराबर है। तो इसका आंसर फाइंड कर लो तो आपको T1 मिल जाएगा। सेम वे T2 भी मिल जाएगा कि नहीं, डन। अच्छा, इतना आंसर आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर करना होता है, अरे हाँ या ना। सो विद इन 1 मिनट इतना कैलकुलेशन आपसे हो जाना चाहिए। चलो समझ में आएगा, देखो तो कितना आंसर आता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। T2 फाइंड करो, इसमें ही रख लो ना, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 120 है। ले 87.5 आता है, 37.5। तो T1 माइनस T2 कर दो ना, वही आंसर आएगा। देखो T2 कितना आया 37.5, तो दोनों का डिफरेंस ले लो कितना आता है 82 माइनस 37 करोगे तो 45 के अराउंड, हाँ 45 के अराउंड आंसर आएगा। तो देखो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है 45 डिग्री, बराबर है। देखो कैलकुलेशन इज क्वाइट लेंथी बट यू हैव टू डू फास्ट, बराबर है। ये रहा, देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया है, समझ में आया, बराबर। चलो एक और मैं देता हूँ अलग से, सपोज ऐसे है, देखो ऐसे भी दिया जाता है कि ऐसे है, दैट इज़ ये हो जाएगा आपके पास 3 रॉड, तो यहाँ पे किरचॉफ रूल अप्लाई करना होता है, बराबर। क्या हो जाएगा कि सपोज यहाँ पे टेम्परेचर T1 दिया, ये हो जाएगा टेम्परेचर T2 दैट इज़ टेम्परेचर T3, सबका लेंथ दिया है कि इसका लेंथ दैट इज़ एरिया सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी K1 लेंथ L1 देन एरिया A, चलो सबका एरिया सेम कर देते हैं ऐसे, इसका है K2 लेंथ L2 है, इसका K3 लेंथ L3 है, बराबर है। यहाँ पे ऐसा दिया होगा कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T1 इज़ ग्रेटर देन T3। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है T1 है, बराबर। तो आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन विच इज़ T0, बराबर है। अभी बोलो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर हम हीट फ्लो देखें तो T1 सबसे ज़्यादा है तो ये ऐसे होगा, बराबर है। जंक्शन पे आएगा ना, ये जो करंट है वो ऐसे डिवाइड होगा,
सो दैट इज योर I1 प्लस I2। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? तो आपको कुछ भी दे सकते हैं, देखो आपको ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे 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 भी दे सकते हैं, बराबर है। आपको फ्लो दिखाया जाएगा, आपको टेम्परेचर जो है वो दिखाया जाएगा, बराबर। यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और इधर ऐसे जाएगा, तो आपको ऐसी फिगर भी दे सकते हैं, बराबर। तो कंडीशन क्या होगा, यही होगा। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ, I1 इज इक्वल टू सॉरी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसका मतलब क्या हो गया, हमें तो ऐसा मिलेगा H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। बोलो हाँ या ना। H इज इक्वल टू क्या होगा, डेट मीन्स इसको मैं H1 ले लेता हूँ, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3 हो जाएगा। क्लियर, डेट इज योर H3। तो इसके अंदर अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो K1 डेट इज इंटू A1, ओके। ये A1 A2 A3 कर देते हैं ना, A2 A3 डेट इज A2। तो ये क्या होगा, T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K2 A2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू T0 माइनस T2 प्लस K3 A3 डिवाइडेड बाय L3 इंटू क्या हो जाएगा T0 माइनस T3। बोलो हाँ या ना, बराबर। इन जनरल आपको क्या दिया होगा, लेंथ या फिर एरिया जो है वो सेम दिया होगा, बराबर। तो दैट इज अ जनरल फॉर्मूला, आप इसके हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। चलो आएगा ना समझ में, हेलो, ओके। चलो नेक्स्ट आता है हमारे लिए, नेक्स्ट आएगा स्फीयर के लिए। मान लो होलो स्फीयर दिया है, क्या दिया है, होलो स्फीयर। सो इफ यू हैव होलो स्फीयर, तो स्फीयर ऐसे होगा, देखो दैट इज अ होलो स्फीयर, ये अंदर वाला पार्ट, ओके। तो दोनों का रेडियस जो होगा अलग होगा, तो दैट इज रेडियस R1, ये आउटर रेडियस है R2, बराबर है। यहाँ पे मैं टेम्परेचर T1 रखता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा, तो एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, बराबर। T1 इज़ ग्रेटर देन T2 रखते हैं, या फिर T2 जो है वो T1 से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, अगर मैं बाहर का टेम्परेचर जो है वो अंदर के टेम्परेचर से ज़्यादा ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा, हीट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। बोलो हाँ या ना, ऐसे। सो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, बराबर है। तो देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, H इज इक्वल टू डेट इज dq बाई dt। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बना देता हूँ कि डेट मस्ट बी क्या आएगा, 4 पाई k डेट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। R1 एंड R2 क्या होगा, दीज आर द रेडियाई, ओके। तो अगर इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू आएगा 4 पाई k R1 R2 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ध्यान रखना R2 माइनस R1 पॉजिटिव लेना है, मतलब कि बड़ा माइनस छोटा करना है, बराबर। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर अ हीट कंडक्शन थ्रू होलो स्फीयर, बराबर है। हेलो, समझ में आएगा कि नहीं? सो इसको रट लो, बराबर। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन जो है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ऐसा कि अंदर जो है आप क्या करिए, थर्मोकॉल शीट है, ध्यान रखना, दैट इज़ अ थर्मोकॉल। ये जो स्फीयर होगा क्या है, दैट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोकॉल। अंदर क्या रख दिया आपने, आइस रख दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ आइस हुज मास इज सपोज इज गिवन 1 किलोग्राम और वॉट एवर, बराबर। तो आपको ऐसा बोलेंगे कि 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस इज मेल्ट, ओके। आइस जो होगा वो मेल्ट होगा, ठीक है ना। तो कितना बचा होगा या फिर कितना मेल्ट होगा वो आपको फाइंड करना है। तो क्या करोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या करेंगे, dq बाई dt, यही फॉर्मूला आएगा कि नहीं। और आइस जो है वो क्या करेगा, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका स्टेट चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। ये क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, m इंटू एल डिवाइडेड बाई टी। टी आपको दिया होगा 1 आवर, बाकी सब कुछ दिया होगा। आपको फाइंड क्या करना है, m, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो रिमेनिंग पूछा है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, एंड कितना मेल्ट होगा वो भी आपको मिल जाएगा। चलो समझ में आएगा कि नहीं, हाँ बोलो। मतलब ये हमने, अच्छा ये T2 माइनस T1 कर दूंगा ना, ये बाहर से अंदर जा रहा है, इसकी वजह से आपको आंसर पॉजिटिव लाना है, ध्यान रखना।
हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा लिया था, नेगेटिव लिया था कि नहीं, इसकी वजह से वो माइनस था, तो हमें पॉजिटिव ही जाना है। तो बाहर का टेम्परेचर जो मतलब जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना वो इधर रखना है, T2 माइनस T1, बराबर। बोलो और कोई डाउट, बराबर। ये फॉर्मूला रटो, और ऐसे क्वेश्चंस आए तो ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, Q इज इक्वल टू M इंटू एल। डन, चलो लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज दी सिलेंडर। मान लो कि आपके पास सिलेंडर है, कौन सा, होलो सिलेंडर। कैसा है, होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर ऐसे होगा, देखो ये हो जाएगा हमारे लिए होलो सिलेंडर। चलो हो गया होलो सिलेंडर। ये अंदर का तापमान है T1, बाहर का तापमान है T2, बराबर है। मान लेते हैं कि T1 जो है वो कैसा है, इज़ ग्रेटर देन T2, तो फ्लो किस तरफ होगा, अंदर से बाहर, मतलब कि यहाँ पर फ्लो होगा। देखो ध्यान रखना, डेट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये यहाँ से फ्लो होगा, बराबर है। अभी H का फॉर्मूला क्या आएगा, डेट इज dq बाई dt, K इंटू ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। तो इसके थ्रू में क्या आंसर मिलना चाहिए, H इज इक्वल टू डेट इज 2 पाई K इंटू एल, डेट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय log ऑफ R2, सॉरी log ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1। ओके, अंदर का रेडियस क्या हो जाएगा R1 एंड बाहर का रेडियस हो जाएगा R2। क्लियर, बोलो हाँ या ना। अरे याद रखना है ना, ये इसको रट लेना, तो इसके अंदर भी आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, ये क्या होगा, डेट इज़ द होलो पार्ट, मतलब कि ये कैविटी है। यहाँ पे आपको क्या रखना है, आइस या फिर कुछ और भी रखना है तो रख सकते हैं। चलो क्लियर, हेलो, लिखना बाकी है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। कंप्लीट। चलो इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ कि सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार कि ये क्या है, डेट इज़ द होलो सिलेंडर। देखो ध्यान रखना, ठीक से देखना ध्यान से। भी इसके अंदर आपने एक और सिलेंडर रखा है, ये वाला, ये भी कैविटी नहीं है। ओके, ये है दूसरा सिलेंडर, ऐसा हो गया, बराबर। इसका थर्मल कंडक्टिविटी ऐसा है, दैट इज़ द K1। ये क्या है, दैट इज़ द K1। K1 इज़ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इनर वन एंड K2 जो है वो आउटर वन है, बराबर। इसका रेडियस जो है मैं देख लेता हूँ कि डेट इज़ R, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2R है बाहर वाले का, बराबर। अभी इस एंड के ऊपर टेम्परेचर T1 है, इस एंड के ऊपर टेम्परेचर T2 है। हियर T1 इज़ ग्रेटर देन T2। बोलो फ्लो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। बोलो यहाँ पे क्या करोगे, आपको पूछा है व्हाट इज़ द K इफेक्टिव, K इफेक्टिव ऑफ ए गिवन कॉम्बिनेशन, K इफेक्टिव ऑफ ए गिवन कॉम्बिनेशन। बोलो जल्दी 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 जल्दी, क्या करोगे। अच्छा ये कनेक्शन कैसा होगा, कैन वी से दैट, अच्छा कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला, कौन सी, ये वाली, 2 पाई KL T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई log ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1। बोलो हाँ या ना। नो अरे ये तो अलग चीज़ है, यहाँ पे तो आपने कैविटी रखा था, अभी यहाँ पे कैविटी नहीं है, फ्लो ऐसे होगा। तो ये कौन सा कनेक्शन, देखो यहाँ पे लेंथ सेम है, एरिया सेम है, पैरेलल है। यस बढ़िया, कैसे पता चला पैरेलल है, दिया, बराबर। एरिया डिफरेंट है, बराबर है ना, एरिया डिवाइड हो रहा है, देखो हाँ, टेम्परेचर ऐसे हो रहा है, देखो बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है पैरेलल कनेक्शन। तो देखो पैरेलल कनेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, फॉर
पैरेलल कनेक्शन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। के इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है? के इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 है ना, सो वी कैन राइट K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। बोलो हाँ या सॉरी, A1 प्लस A2 होगा ना इधर, डिवाइडेड बाय इट इज A1 प्लस A2, बराबर हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा ना। ना व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2? बोलो A1 कितना लेंगे, इसका लेंथ में L ले लेता हूं, बोलो एरिया कितना होगा, इतना ही लेना है ना आपको। तो A1 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू अंदर वाले का, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बोलो A2 कितना होगा, बराबर है, तो ऐसे होगा ना पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ऐसे करना है। मतलब कि क्या आएगा, पाई R2 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2R एंड R1 कितना है R, सो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये 3R हो जाएगा कि नहीं। मतलब कि आपका आंसर कितना आएगा, 3 पाई R स्क्वायर। क्लियर? तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, सो K1 इज योर K1, A1 कितना होगा पाई R स्क्वायर, ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू K2 3 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज द K इफेक्टिव। बराबर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया वाला। चलो आएगा समझ में, लिख लो। बाद में एक लास्ट टॉपिक है जो आपको अच्छी तरीके से मतलब कि पूछते हैं, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड। बराबर है, देखो सिचुएशन कैसा है, तो जहाँ पे विंटर आता है, मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो हमने क्या देखा होगा कि जो लेक होगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बर्फ़ की लेयर बन जाती है ना। तो वैसा ही सिचुएशन हमें यहाँ पे देखना है कि सपोज़ ये क्या है, दैट इज़ द आइस, ये क्या हो गया आइस, नीचे क्या होगा, ये लेक या कि भी पॉन्ड है, तो नीचे क्या होगा, पानी होगा, सो दैट इज़ योर वाटर। बराबर है, ये क्या होगा वाटर, ये क्या होगा, दैट इज़ योर आइस। बराबर है, बोलो ये वाला टेम्परेचर कितना होगा, ये वाला टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर कितना होगा, 0 से ज़्यादा होगा या फिर 0 से कम होगा, कम होगा। ये कितना होगा, -T डिग्री सेल्सियस, ये -10 डिग्री होगा, तभी तो ये बर्फ़ जमेगी ना। बर्फ़ अंदर से नहीं जमती ना, बर्फ़ ऊपर से जमती है, देखिए ध्यान रखना। अगर लेयर फॉर्म होगा तो कहाँ से बनेगा, ऊपर से बनना स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऊपर वाला जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू दी टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये आइस फॉर्म हो गया, मतलब कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। आप नीचे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नियर अबाउट 4 to 7 डिग्री जो है वो मेंटेन रहता है ना। बराबर, तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये थिकनेस दी होगी, सपोज दैट इज़ अ थिकनेस। ये कितना थिकनेस है, वाई। तो अगर पहले मान लो कि कुछ नहीं है, मतलब कि वाटर ही है, अभी क्या हो गया, एक लेयर फॉर्म हुआ, हुज थिकनेस इज वाई। बराबर है, तो इतना वाई थिकनेस बनने में कितना टाइम लगेगा, क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम किसके लिए, ये वाई थिकनेस का आइस का लेयर फॉर्म करने में। बराबर है, फाइंड आउट द टाइम टू फॉर्म द आइस ऑफ थिकनेस वाई। बराबर है, तो सबसे पहले ये बताओ हीट फ्लो कहाँ से होगा, 0 डिग्री ज़्यादा है, मतलब कि हीट फ्लो इस तरफ से होगा, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम छोटा सा पार्ट ले लेंगे कि मान लेते हैं कि इतना जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ स्मॉल थिकनेस, कितना हो जाएगा से dy। उसको फॉर्म करने के लिए जो है वो करो, यहाँ पे आइस जो है, सॉरी वाटर जो है वो आइस में फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू M इंटू L यूज़ करेंगे। बराबर है, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम इज इक्वल टू A, एंड थिकनेस कितना हो जाएगा, dy इंटू L। इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, इसको हम कंपेयर करेंगे Q इज इक्वल टू K इंटू A, दैट इज T1 माइनस T2, दैट इज डेल्टा T, K इंटू A डेल्टा T डिवाइडेड बाय Y।
बोलो हाँ या ना, बराबर है, दोनों इंटू टी हो जाएगा, सॉरी इंटू डी टी, बस दोनों को कंपेयर कर लो, देन डी टी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ एंड इंटीग्रेशन कर लो, आपका टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, तो टाइम इज इक्वल टू रो इंटू एल। ना व्हाट इज एल, एल इज नथिंग बट दैट इज अ लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय 2 टी मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस याद रखना, इंटू y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला, इसको रट लो, बराबर है। ओके तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट, जो होगा कांस्टेंट होगा, L इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बराबर। K भी कांस्टेंट रहेगा, T जो है वो डिफरेंट रहेगा, बट हियर वी कैन से दैट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये जो है कंडीशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जिसको मैं आपको देता हूँ 3 स्टार। अगर आप ग्रोथ ऑफ आइस का फॉर्मूला आया, सो इन जनरल आपको यही फॉर्मूला जो है वो आपको यूज़ करना आएगा। तो ध्यान रखना, टाइम जो होगा, टाइम टू गेट द थिकनेस ऑफ आइस लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। अगर आपको y1 0 लेना है तो ये क्या हो जाएगा, y2 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। मतलब कि देखो इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, बराबर। ये लिख लिया तो डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोज, सॉरी that is t is equal, t is directly proportional to, तो t is directly proportional to y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइप ऐसे आता है कि मान लो कि आपको क्या दिया है, टाइम टेकन टू डबल एंड ट्रिपल द थिकनेस, y इज इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा कि टाइम टेकन टू डबल एंड ट्रिपल दी थिकनेस ऑफ आइस, बराबर है। तो देखो पहले क्या था, कुछ नहीं, मतलब कि सिर्फ पानी था, मतलब कि y1 इज इक्वल टू 0 ले लोगे। अभी क्या होगा, y1 बना रहे हो, मतलब कि आपका लेयर ऐसे बनेगा, देखो दैट इज़ योर लेयर, पहले लेयर बनाया ऐसा, तो दैट इज़ योर फर्स्ट लेयर y1, ये कितना होगा डबल, दैट इज़ 2y, देन कितना हो जाएगा 3y। तो आपको यहाँ से फाइंड करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है, बिगिनिंग फ्रॉम 0, बराबर है। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए तो क्या हो जाएगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, बोल सकते हैं कि नहीं, अरे हाँ या ना। सो y 2y 3y, ओके, वन टाइम डबल ट्रिपल करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सो t1 इंच टू t2 इंच टू t3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 इंच टू 4 इंच टू 9 इंच टू 100 हो जाएगा कि नहीं, यस। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन जो आपको पूछते हैं इजीली। दूसरे में क्या है, चलो इसमें समझ में आया कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको थिकनेस जो है वो बनानी है, मतलब कि क्या 0 टू y, मतलब कि ये, देन y टू 2y, देन 2y टू 3y, इसको भी बोल सकते हैं कि नहीं, अरे हाँ या ना। मतलब कि आपका फिगर जो है ऐसे बनेगा, देखो ये लेयर हो गया, दैट इज़ y, ये y हो गया, बराबर। इससे ऊपर से कितना हो गया 2y, इससे कितना हो गया 3y, सो एंड सो। तो यहाँ पे आपके y जो है वो 0 लेना नहीं है, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे y 0 नहीं होगा, देखो इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि t1 इंच टू t2 इंच टू t3 क्या हो जाएगा, दैट इज़ y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। मतलब कि फर्स्ट में क्या आएगा y माइनस 0, मतलब कि y दैट इज़ 1 आएगा। दूसरे में क्या आएगा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। तो 1 इंच टू 3, देन क्या आना चाहिए 5 7, बोलो हाँ या ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं।